So students, we are going to start a new chapter from Beehive book. The name of the chapter is Packing, chapter number 7, written by Jerram K. Jerram, a very famous and humorous writer. This is an extract, this is a short form, short part, you can say, taken from a novel composed by, written by Jerram K. Jerram. The name of the novel is Three Men in a Boat. So this is an extract taken from this novel. Okay, so in this chapter, actually, the writer tells about his packing as they are about to move on a particular trip of a journey, and before that they were packing. So this small extract gives us a very light humor about how to pack the things and how the people get themselves involved in this packing, and such kind of humor creates in packing. So let's read the chapter. Let's start. I said I would pack. Here I means the Jerram. I means Jerram himself. He said I would pack. Jerram कहते हैं कि मैं पैकिंग करूँगा. There are three friends. अभी नाम आ जाएंगे सबके. I rather pride myself on my packing. He says that he was having the pride in packing. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. He says that the packing is the thing which I know the most. It surprises me myself sometimes how many such things are there are. कभी कभी मैं भी सरप्राइज हो जाता हूँ कि कितनी चीज़ें मुझे आती हैं. The writer prides himself and he says that कि packing एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा मुझे आती है. I impress the fact upon George and Harris. दो और फ्रेंड होते हैं उसके साथ में, जॉर्ज और हैरिस, और एक उनका डॉग होता है मॉन्टमोरेंसी. आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस. इस फैक्ट को मैंने इम्प्रेसिवली जॉर्ज और हैरिस को भी बताया. एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी. और उनको मैंने कहा कि दे शुड लीव द मैटर ऑफ पैकिंग ऑन मी. मैं पैकिंग कर दूंगा. दे फेल इनटू द सजेशन विद द रेडीनेस. रेडीनेस मीन्स एट वंस दे बिकम रेडी. डैड हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट. कि मुझे बड़ा ही वियर्ड और बड़ा ही अजीब लगा कि एकदम से इन लोग कैसे मान गए. जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल. जॉर्ज जो थे वो स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर, इजी चेयर पे जाके बैठ गए आराम से. और हैरिस कॉक हिज लेग ऑन द टेबल. हैरिस ने अपने पैरों को टेबल के ऊपर रख लिया. दिस वॉज हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड. क्योंकि मेरी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि उन लोग काम ही बंद कर दें. राइटर ये नहीं चाहता था. राइटर डिड नॉट वांट दैट दे शुड स्टॉप द वर्क, कि वो काम ही बंद कर दें. दे शुड डू द वर्क अंडर द राइटर ही वांटेड. जैरम ये चाहते थे कि जो काम है वो मेरे अंडर में हो. सो इसलिए वो कहते हैं दिस वॉज हार्डली व्हाट आई इंटेंडेड. इंटेंडेड मीन व्हाट आई मीन्ड. व्हाट आई हैड meant of course was that I should boss the job. I wanted to boss the job means I wanted to supervise the job. मेरा तो इतना ही कहना था कि मैं supervise करूँगा, आप लोगों को instruction दूंगा. I would provide you the instruction and you have to do the work. अपने दोस्तों के लिए वो सोचते. And that Harris and George should potter about. Potter about means to do something unimportant. All the unimportant work they would do means to pack and to carry the things, to take the things, to keep the things from one place to another. ये सारे काम ये दोनों करेंगे. He would only govern them, he would only boss the job. वो सिर्फ बॉस करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, ऐसा जयराम का कहना था. So and that Harris and George should potter about under my directions. I pushing them aside every now and then with oh you here, let me do it. There you are, simple enough, really teaching them, as you might say. Their taking it in the way did irritated me. मैंने तो ये सोचा था कि I would command them, और उनको बात में मैं every now and then means every occasionally
occasionally I would say to them, oh you here, let me do it. अरे मैं करके दिखाता हूँ यार, ऐसे नहीं करते हैं. There you are, simple enough. अरे देखो इतना आसानी से कर देते हैं. ऐसा ही होता है ना जब कोई हमें सुपरवाइज करता है तो हमें इस तरह से इंस्ट्रक्शन देता है. We are given such kind of instruction by our supervisors. It is not like that. It is very easy. What are you doing? तुम क्या कर रहे हो? ऐसा थोड़ी ना होता है. So there you are, simple enough, really teaching them. मैं उनको सिखा रहा होता. Means Jerome wanted all kind of things. As you might say, जैसा कि आप समझ रहे होंगे. They are taking it in the way they did irritated me. लेकिन इस तरह से उनका ये इस तरह से बिहेवियर इसने मुझे इरिटेट कर दिया कि वो तो जाके बैठ गए. They sat very easily. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. Jerome says कि मेरे लिए सबसे irritating thing यही है कि when I do the work and others are sitting, it irritates me. ये चीज़ मुझे बड़ी irritate करती है कि मैं काम करूँ and other persons are sitting, दूसरे लोग बैठे. I lived with a man. Now in the story, the whole novel, Jerome क्या करते हैं? Jerome story के बीच में story बताते हैं. Means he becomes nostalgic. अपने पास्ट में चले जाते हैं और पास्ट की बातों को ह्यूमरसली सारे ह्यूमर्स के साथ बताते हैं. मीन्स ह्यूमरस अकाउंट ऑफ हिज लाइफ he shares with the people, shares with the readers. I lived with a man once who used to make me mad that way. अब बताते हैं कि मैं एक आदमी के साथ रहता था जो इस तरह से मुझे मैड कर देता था, पागल कर देता था. He would loll on sofa and watch me doing the things by the hour together. लॉल मीन्स सिटिंग आइडल, आराम से बैठ जाना. तो सोफे पे बैठ के लॉल करके बैठता था और मेरे को घंटे काम करते देखता रहता था. He said it did him real good to look on at me messing about. और उस आदमी का ये कहना था कि मुझे मैस करते हुए देखकर, यानी कि मैसिंग मीन्स टू गेट इन्वॉल्व इन द वर्क, ही यूज्ड टू हैव फन. मुझे जब वो देखता था कि मैं काम में इन्वॉल्व हूँ तो उसको बहुत फन मिलता था. ऐसे एक आदमी के साथ ही यूज्ड टू लिव, वो रहते थे. Now I am not like that. I can't sit still and see another man slaving and working. लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ. I can't sustain this. मैं ऐसा ना कर सकता हूँ ना सह सकता हूँ कि कोई आदमी स्लेव की तरह काम करे. I want to get up and superintendent and walk around with my hands in my pockets and tell him what to do. It is my energetic nature. I can't help it. मैं तो बस इतना ही कर सकता हूँ कि मैं मतलब दूसरों को काम करते जब मैं देखता हूँ तो बैठ नहीं सकता हूँ. हाँ, सुपरिटेंडेंट जरूर कर सकता हूँ, उनको सुपरवाइज कर सकता हूँ, उनको इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे करो, बिकॉज इट इज़ माई नेचर. आई कांट हेल्प इट. ये तो मैं मतलब अपने आप को रोक ही नहीं सकता हूँ ऐसा करने से. However, I did not say anything. जबकि मैंने उनके इस बिहेवियर पे कुछ नहीं कहा. अब वो वापस अपनी स्टोरी पे आ जाता है. कहता है however, I did not say anything but I started the packing. मैंने उनको कुछ नहीं कहा, जॉर्ज और हैरिस को. I started packing. It seemed a longer job than I had thought it was going to be. मुझे लगा था 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट में पैकिंग हो जाएगी, but it was a longer job. It seemed a longer job than I had thought it was going to be. But I got the bag finished at last and sat on it and strapped it. At last मैं उस बैग के ऊपर बैठा और उसको स्ट्रैप कर दिया. उसमें स्ट्रैप लगे होते हैं. एंड आई पकड़ देम, स्ट्रैप कर दिया. एंड यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस. एंड आफ्टर दैट हैरिस सेड, क्या बूट अंदर नहीं रखोगे? व्हेन द बैग वाज पैक्ड, हैरिस सेड, वोंट यू पुट द बूट्स इन? शूज को अंदर नहीं डालोगे इसमें? एंड आई लुक्ड अराउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम. फिर जब मैंने देखा तो मुझे याद आया कि अरे मैं जूते तो बाहर ही भूल गया. दैट्स जस्ट लाइक हैरिस. हैरिस ऐसा ही है. ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई हैड गॉट द बैग शट एंड स्ट्रैप. He did not say at that time when I was packing, when I was buckling the bag, he did not say, he did not utter a word. And George laughed, one of those irritating, senseless laugh of his. और जॉर्ज जो था इस बात पे हंसने लग गया. उसकी जो हंसी थी बड़ी सेंसलेस और इरिटेटिंग थी. They do make me so wild and they made me mad. उन्होंने मुझे पागल कर दिया. I opened the bag and packed the boots in.
मैंने बैग को खोला और जूतों को वापस डाल दिया. एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट अ हॉरिबल आइडिया अकर टू मी. और जब मैं उसको पैक कर रहा था, an idea which was very horrible for me, it occurred to me, had I packed my toothbrush, कि मैंने अपना टूथब्रश पैक किया कि नहीं. I don't know how it is, but I never do know whether I have packed my toothbrush. पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे आ गया, बट मुझे लग रहा था कि मैंने अपने टूथब्रश को पैक नहीं किया था. My toothbrush is the thing that haunts me. मेरी ये टूथब्रश जो है वो ऐसी चीज़ है जो हमेशा मुझे हॉन्ट करती है, ट्रबल करती है, रिपीटिंग नैगिंग देती है, मुझे ट्रबल देती है. When I am traveling, जब मैं ट्रैवल करता हूँ तब. And makes my life a misery. It makes my life miserable. I dream that I haven't packed it. मुझे ड्रीम आता है कि मैंने इसको पैक नहीं किया है. एंड वेक अप इन अ कोल्ड पर्स्पिरेशन, और मैं उड़ जाता हूँ वाइल ट्रैवलिंग. जब ट्रैवलिंग का टाइम आता है तो ऐसा मेरे साथ होता है. और पर्स्पिरेशन में मीन्स इन वेटिंग, पसीने आने में मैं उसको उड़ जाता हूँ साथ में. जब मुझे पसीना आता है रात में ये सोचकर कि मैंने तो ब्रश पैक ही नहीं किया है, मैं उड़ जाता हूँ. एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट, एंड उसको सर्च करता हूँ. हंट मी सर्च. एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट, और मॉर्निंग में इसको यूज़ करने से पहले ही मैं पैक कर देता हूँ. एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट, और फिर उसको अनपैक करता हूँ वापस ब्रशिंग करने के लिए. मीन्स दिस इज हिज नेचर एंड नॉर्मल रूटीन ऑफ ट्रैवलिंग. जब भी ट्रैवलिंग करता है ये चीज़ उसके साथ हमेशा होती है. एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, और जब मैं बैग से खोल के उसको बाहर निकालता हूँ तो ये सबसे लास्ट थिंग निकलती है. एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और फिर मैं उसको पैक करके फॉरगेट कर देता हूँ, भूल जाता हूँ. एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एंड द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन. सॉरी, मैं जब बैग को रिपैक कर देता हूँ तो मैं इसको बाहर भूल जाता हूँ. एंड द लास्ट मोमेंट, लास्ट आवर, जब मुझे स्टेशन जाना होता है, देन आई रश अपस्टेयर्स एंड आई कीप माई ब्रश इन माई हैंड आइदर इन माई पॉकेट. फिर मैं एट लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन, रैप्ड इट इन माई पॉकेट हैंडकरचिफ. उसमें उसको किस में रख के लेकर जाता हूँ? हैंडकरचिफ में, बिकॉज आई ऑलरेडी पैक माई ऑल दी लगेज. तो इसी तरह मेरा जो ब्रश है वो हमेशा बाहर ले जाता है. ही वॉन्ट्स टू से. ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग्स आउट नाउ. मॉर्टल मीन्स एवरी थिंग विच आई केप्ट इनसाइड. तो मुझे सारी चीज़ें, मुझे उस समय लगा कि ब्रश मेरा अंदर नहीं गया है. उससे पहले हमें ये सारी बातें वो बता रहा था कि नॉर्मली ब्रश के बारे में उसने अपनी लाइफ को बताया कि लाइफ जब भी वो कहीं ट्रैवल करता है तो ब्रश के साथ क्या होता है उसका. नाउ ही अगेन सर्च द टूथब्रश. उसको लगता है कि उसने पैक नहीं किया है. सो सारी चीज़ें वो बाहर निकालता है. ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट, और लेकिन उसको अपना ब्रश नहीं मिलता. आई रुमैक द थिंग्स. रुमैक मतलब सर्च इन अ हरीड वे. up into much the same state that they must have been before the world was created. जब दुनिया क्रिएट नहीं हुई थी, the big bang हुआ था, the things were scattered. So what I did, I scattered all the things on the floor of the bag. बैग को जब मैंने सर्च किया, सारी चीज़ें निकाल के बैग की ऐसे रख दी जैसे ये दुनिया पहले थी, बिखरी हुई. एंड व्हेन chaos reign, और जब chaos reign करता था, chaos का मतलब होता है प्रॉब्लम, अराजकता, राइट. बट यहाँ chaos का मतलब है the mishappenings, the things were scattered in the world. So when the chaos reign means rule, before the world started, I created the same thing upon the floor. Of course I found George and Harris 18 times over. मैंने जॉर्ज और हैरिस का जो ब्रश था वो 18 टाइम्स मुझे मिला. बट आई कुड नॉट फाइंड माई ओन, लेकिन मुझे अपना ब्रश नहीं मिला. आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन. चीज़ों को मैंने वापस एक करके अंदर डाला. एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड शुक इट. सब चीज़ों को हिला के देखा. देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट एंड आई रीपैक्ड वंस मोर. फिर मेरा जो ब्रश था मुझे अपने ही जूते के माउथ में मिला, जूते के मुंह में मिला. देन आई रीपैक्ड वंस मोर, और इसको मैंने निकाल कर फिर से रीपैक कर दिया.